Okay, so the remaining question of exercise 10.2 is uh, is question number 8. Question number 8. So you can see question number 8 here. Question number 8 has two parts. In part A, find the number of different 6-digit numbers which can be made using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. Assume that a number cannot begin with 0. So we have digits, 6 digits, and we have to make a 6 digits. We have to make 6 digits numbers. Okay. So according to A, if we go back to the whiteboard, okay. So we have exercise 10.2 and question number 8. We have 6 digits given as 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so these are 6 digits, and given is that no number can begin with a 0. Okay, and then no repetition is allowed, and what we have to find the number of different 6-digit numbers which can be made using the digits. Okay, so now the only restriction is we should not have any 0 in the beginning. Okay, so now what we will do, if we want to make this number, so what how many slots do we have or should we have? So slots should be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in the first slot, which number cannot come? That is 0. 0 cannot come. So how many options do we have? 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 options हैं, इनमें से कोई एक आएगा. तो how many options do we have? 5. Okay, so we will write here 5 ways. Okay, now for rest of the slots, rest of the 5 remaining slots, how many options do we have? We have all options including the 0. Okay, so now what should we write here? So 5 into 4, and then for the third slot we will have the option 3 options, then 2 options, then 1 options. So how can we write this? 5 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. So which becomes equal to 2 3 is 6, 6 5 is 30, 34 is 120, and 125 is 600. So 600 is the answer. Okay, so this is the answer, right? So yes, this was the answer for part A. Now part B. In part B, if we go back to the PDF, how many of 6 digits numbers, how many of 6 digits numbers in part A are even? How many are even? So there are two ways that the one is straight away we just find the even numbers, but I think we should find the odd numbers. Why? Because in the even number 0 also, if there is an even number, so on the extreme right, 0 also come. So 0 may be problematic. So that is why I am finding at first the odd numbers. Okay, so odd numbers. So odd numbers, how to find the odd numbers? Uh, right. So
we have to find the even numbers. So the main task is to find the how many even numbers. This is the main task. Okay. So this is the even numbers we have to find. Now, first to find even numbers, we are going to find first the odd numbers. To we find the odd numbers. Okay. So how do we find the odd numbers? I do here. Here it should be the beginning numbers, or starting numbers, and then here should be the ending. Here should be the ending number. Beginning, and this is the ending, and this is the middle part. Okay, this is the middle part. So the beginning one digit and ending one digit. So what numbers do we have for the big with which numbers can we begin? So the numbers are 1, 2, 3, 4, and 5, and the ending must be with an odd number. So ending can be with 1, 3, and 5. Okay, so starting with 1, starting with 1. See, if we want to keep here 1, here I'm writing this, the number is here and the option is 1. So the option I have fixed, so one option, so that is why I'm writing here 1 also. So this one is basically showing the option, and this one is showing this number. So if this number is here, so this cannot be repeated here, so this one will be cancelled. So one can come with two of the numbers, two of the digits. What? 3 and 5. Okay, so 3 and 5. So for 3, how many options do we have for 3? That is 1, right? So the same we will do here. I think I should this I remove this one because this might be confusing for you. Okay, now this is the last one, and this is we are doing with 1. So with one option, and then for 3 one option. So again we will use 1 here. So for using 1, we have only one option, and in the same way we cannot use here 3 again, we will use here 5. So how many options for 5? 1. Okay, so this is what we did with 1. अब 1 यूज़ कर लिया, तो 1 के साथ हम कौन से डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं? 3 and 5 टू गेट अ 6 डिजिट ऑड नंबर. ठीक है. अच्छा, अब मिडिल का क्या होगा? अब मिडिल में हमारे पास कितनी स्लॉट्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा नंबर जो है 6 डिजिट्स का होगा, तो इसलिए 6 डिजिट्स के लिए हम क्या करेंगे? 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया. तो इसी तरह से 1, 2, 3, बीच में 4 नंबर्स आएंगे, वो 4 डिजिट्स आएंगे. सही है. वो कौन से डिजिट्स होंगे? वो डिजिट्स होने चाहिए, अगर इस सिनेरियो की बात करें तो 1 तो हो नहीं सकता. सही है, क्योंकि 1 को यहाँ यूज़ होना है, हमने फिक्स कर दिया. सही है. और इस जो फर्स्ट रो है उसके लिए 3 नहीं हो सकता, तो 1 और 3 तो स्ट्रेट अवे चले गए. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा? वो कौन से नंबर होने चाहिए? उसको हम किसी और कलर से शो कर दें, तो वो होने चाहिए 2 और 4 और
क्योंकि फर्स्ट रो है तो 5 भी हो सकता है बिल्कुल, और 0। ये वो डिजिट्स हैं जो कि मिडिल में यूज़ हो सकते हैं। तो किसी भी एक डिजिट के लिए जब हम इस स्लॉट को फिल करने जाएंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस। सो व्हाट वी विल राइट हियर, 4, देन कितने ऑप्शंस? 3, देन 2, देन 1। ठीक है। अच्छा, अब ये था इस सिनेरियो के लिए। अगर हम दोबारा से 1 यूज़ कर रहे हैं, ये दोबारा से हमने 1 ही यूज़ किया क्योंकि दोबारा हमें डेफिनेटली करना है। तो अब इस जगह क्या होगा? इस जगह 3, जैसे पहली वाली रो में 3 यूज़ हुआ था, सेकंड वाली में 5 यूज़ होगा। तो हमारे पास मिडिल नंबर्स कौन से होंगे? मिडिल नंबर्स कौन से हुए हमारे पास? वो होंगे 2, 4, 3, 0, ये होंगे। तो एक दफ़ा फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सही है। अब इस सिनेरियो को मैं इस तरह से मैं इसको रिपीट करता हूँ ताकि बाकी के जो सिनेरियोज हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने सेलेक्ट किया। तो ये क्यों नहीं आ रहा? और ये इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये सिनेरियो हमने पूरा उठाया और अच्छा जी, तो बस यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ से स्टार्टिंग, क्योंकि एस ओके। तो ये सारा हो गया। अब मैं इसी सिनेरियो को इतना मैंने डिटेल में करके बताया, अब मैं इसको ज़रा शॉर्ट करता हूँ तब, क्योंकि अभी हमें और भी ऑप्शंस जो हैं वो लिखने हैं, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट 1 यूज़ किया है। ठीक है। तो अभी इसी 1 को मैं वैसे लिखूँगा किस तरह से कि एक तरह से ये 1 हो गया, और 1 के साथ हमने क्या यूज़ किया, क्या यूज़ कर सकते थे, वो था 3 एंड 5। ठीक है, 3 और 5। और फिर अब ये जब पहली रो जो है ये किस तरह बनेगी? ये बनेगी 1 इंटू 4, ये यही है जो हम, ये जो हमने ऊपर किया, ये यही यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 4 3 12, 12 3 24। तो सेम नीचे भी अगर हम देखें तो ऐसे ही हो रहा है। तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि फिर 24। अब हम तकरीबन इसी तरह से करते जाएंगे। अब हम आते हैं 2 पर। सही है। तो 2 में क्या होगा? जब अगर मैं 2 यूज़ करता हूँ तो मेरे पास यूज़ करने के लिए क्या ऑप्शन रह जाएंगे यहाँ पर? यानी कि 2 के साथ यहाँ 1 3 और 5, ये तीन ही नंबर यूज़ हो सकते हैं। और बिल्कुल क्योंकि रिपीट कोई नहीं हो रहा, तो इसलिए 2 के साथ हमारे पास बनेंगे 3 ऑप्शन, अनलाइक 2 ऑप्शंस वर देयर इन द प्रीवियस वर्किंग। तो ये हो गया 1 3 और 5। और अगर हम गौर करें तो अब इसमें भी सेम जो परम्यूटेशन, या यूं कह लें कि नंबर ऑफ वेज जो है वो यही बनने हैं। कैसे? कि 2 तो फिक्स कर दिया हमने। सही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 क्या एक ही फिक्स कर रहे हैं, तो 1 ऑप्शन। सही है। बिल्कुल इसी तरह से ये अगर हम ये बन रहा है इससे। ठीक है। अब 3 से क्या बनेगा? इससे भी यही बनेगा और ये बनेगा। और 5 से क्या होगा? 5 से भी एक ऑप्शन बनेगा, क्योंकि 2 यहाँ आ गया और 5 कहाँ आ गया? यहाँ पर, तो एक ही ऑप्शन। और बाकी बीच में क्या चलेगा हमारा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर ये इंटू 1। तो बिल्कुल इसी तरह से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, डबल 1 हो गए। चलो, सही। फिर मल्टीप्लाइड बाय
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये इंटू 1। ठीक है, तो देखें इनका रिजल्ट भी क्या आएगा, 24, अगेन 24, अगेन 24। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि वन के साथ हमने क्या किया, वन के साथ सिर्फ दो ऑड नंबर यूज हो सकते थे, दोज वर 3 एंड 5। देन वी डिड द सेम विद 2, the possibility of using odd digits with 2, those were 1 3 and 5। तो 1 3 और 5 से भी हमें यही नंबर ऑफ वेज मिल रहे हैं, तो सेम वी विल डू विद 3। जब 3 के साथ करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा जैसा कि किसके साथ हुआ था, 1 के साथ। ठीक है, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। तो अब मैं इसको शॉर्ट करते हुए, यानी कि जस्ट क्या रिजल्ट होना चाहिए, 24, इधर क्या होना चाहिए, 24। इसी तरह से अब क्या रह गया, 1 2 3 4। जब हम करेंगे तो 4 में सेम वैसे ही होगा जो 2 में हुआ था। तो 4 से हमारी 3 ब्रांचेस निकलनी है जैसे कि 2 से निकली थी। तो सेम अब मैं सिर्फ और सिर्फ 24 3 दफ़ा लिख रहा हूँ, 24 24 24। सही है, और अब लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा, 5। तो 5 क्या है, 5 भी बिल्कुल सेम वही सिनेरियो यूज़ होगा जो 1 और 3 में हुआ। तो इसलिए 5 में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, कौन से होंगे, 1 एंड 3। और इससे क्या निकलेगा, ये मैंने लाइनें बना दी। अब इससे क्या निकलेगा, 24 और फिर ये 24। ठीक है, तो हाउ मेनी 24 वी आर गेटिंग हियर, हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So 12, so therefore odd numbers are, basically I'm writing here odd numbers, but the sentence should be the number of ways we get 6-digit odd numbers are। तो मैं इतना लंबा नहीं लिख रहा, मैंने बोल दिया वैसे ही, odd numbers are 24 मल्टीप्लाइड बाय कितने, 24 थे मैं भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 टाइम्स 24, और 12 टाइम्स 24 होता है 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24 प्लस 4 288। So these are the odd numbers, right? But we need even numbers. Therefore, ways to get, number of ways to get what? Even numbers. Even numbers. वो क्या होगा? Equal to total, which is 600 minus 288. So this will be 312, and this is our final answer. Okay. So we have done question number 8.